first check that the data sheet that we are having is free of any kind of errors or the missing values. We also define that what is the error, and in that we discuss that anything that is below or that is above the scales or the values that we have defined for each variable will be considered as error. Similarly, there might be some missing values. These errors and missing values can be the human errors as well, and then there might be the possibility that the respondents have not completely filled up the questionnaires. So that's why we might have some missing values as well. So in the last class, we have first checked that whether the data sheet is free of errors and missing values or not. And for that specific purpose, what we did was that we moved to the analyze descriptives, and then we ran the frequencies. For the frequencies, other than the variables which are just meant for the identification, we have to basically go through all the rest of the variables and we have to select them. We are going to enter them into the column of variables. Then from the statistics, we will be selecting the minimum and maximum to have the lowest and highest value of that specific factor. Then we'll be pressing continue, and then we'll be pressing OK. Now you can see that there are the detailed tables as well, and then there are the summary tables as well, right? So we can see that there is one value missing in the age. Rest of the values are within the specified range that they have given in the demographies. Whereas when we talk about main variables, in the main variables, we identified that there were the mistakes in POS3, and then distributive justice. Then POS5 was having missing value. Distributive justice, we have wrote all these errors and missing values in the specific Word document in the last class, right? And now I'm going to go to these specific variables that we are having one by one as well. And I'm going to see that whether there is some other errors as well, or it's only 44 that is existing or lying in the POS3, because it is only the summarized table is only showing me the minimum and maximum values. So if there are any other errors as well, they are not reflected over here, right? So for that purpose, I need to be checking the specific variable wise table that I'm having. So the first variable that we need to correct is POS3. And in POS3, you can see that there is one system missing value, and there is one error that is 45. Then coming to the POS5, now in the POS5, there is only one missing value. Similarly, in distributive justice 1 and distributive justice 2. In distributive justice 1, there is one error as 11 that has been noted, and distributive justice 2, there is one missing value which has been mentioned over there. And in distributive justice 4, there is one system missing that we have already mentioned. Then for procedural justice 1, there is missing value, and procedural justice 2, there is 24, that is the error. So one system missing value in procedural justice 1, and procedural justice 2, there is 24, one error only, and along with that, there is a missing value as well. Then procedural justice 6 and effective commitment 2. Now procedural justice 6 has only one error, that is 33, and one missing value. And then coming to effective commitment 2, it is having 111 as one time. Then 1. AC4 is having 33 one time. And normative commitment 1 is having 11 as its error, which we have already noted. Now these were all the errors and missing values that we have in the data sheet
Rest of the tables are clear, right? Now, come these errors and these missing values. Now, what is the best way to remove them? The best way is pick out your questionnaire. Have these questions checking the that where there is an error or where there is a missing value. For example, you can see that there is a missing value in your questionnaire number 11. So I should be going to this I should be going into that, and I should be looking into that and I should be looking at whether the respondents have responded for POS 5 or it's me that has mistakenly missed it. Right. Similarly, when I'm talking about this particular factor, the questionnaire number 25, we are having the error in questionnaire number 25, that is the 44 in POS3. So the best approach is that I should be picking up the questionnaire number 23, and I should be looking at the POS3 question response, that what has the respondent given the response. Maybe he has given the 4 response, but mistakenly I have pressed that 4 key twice, right, when I was entering the data. So I'm going to see from there and I'm going to refer to that. Then I come to questionnaire numbers. So आप जब भी questionnaire numbers दे रहे होते हैं questionnaire ID दे रहे होते हैं सॉरी, उसका प्राइमरी पर्पस भी यही होता है कि आप अपने डेटा के अगर कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं आप उनको ट्रैक करके करेक्ट कर सकें, राइट, along with the identification. So बेस्ट वे तो यही है कि हम यहाँ पे अपने मैनुअली अपने क्वेश्चनर्स निकालें और उनमें देखें कि किस किस क्वेश्चनर नंबर के अंदर प्रॉब्लम है, डाटा शीट को मैनुअली एक्सप्लोर करके और फिर हम उस एरर को रिमूव करें, राइट. बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी डू नॉट हैव द क्वेश्चनर्स विद अस एंड वी नीड टू परफॉर्म द डाटा एनालिसिस, राइट. आप लोगों के लिए बेस्ट अप्रोच तो यही है कि जब आप कोई भी पेपर लिखें, कोई भी डाटा कलेक्शन करें, ऑलवेज कीप द क्वेश्चनर्स विद यू until that paper is published. जब एक दफा आपका पेपर keep the questionnaires. For example, if I talk about my personal experience, तो मेरे जब papers publish हो जाते हैं, मैं उसके बाद भी 1 to 2 years अपना जो data sets हैं और उनके जो questionnaires हैं, I retain them. उसकी रीजन ये होती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कोई चीज अगर अपने डाटा के अंदर गलत रिपोर्ट कर दी बाय मिस्टेक, बाय एरर, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन मेक सच एरर्स एंड मिस्टेक्स, और आपका किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने 1 साल 2 साल बाद में भी आइडेंटिफाई किया कि आपके डाटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपके कुछ एनालिसिस, कुछ रिजल्ट्स ठीक नहीं है, और उसने वो आपको फिगर आउट किए, आपको कांटेक्ट किया, आपको रब्ता किया, तो फिर आपको वो करेक्शंस करनी पड़ती हैं अपने पेपर्स के अंदर, राइट. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप माय फर्स्ट ऑफ टाइम, राइट. The other important thing is that you will be needing these questionnaires at any point of time during the review process. आपको बार बार एनालिसिस में हो सकता है कोई चीज़ें चेक करने के लिए कहें, आपको पीयर रेटिंग के ऊपर आपको कोई क्वेश्चंस आए हैं जो आपको क्वेश्चनेयर में जाके दोबारा देखना पड़ेगा और फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपने जिन क्वेश्चनेयर्स पे डाटा कलेक्शन की है आप उन क्वेश्चनर्स को भी संभाल के रखें और वहाँ से करेक्शंस करें. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये डाटा शीट है, ये हमारे एक स्टूडेंट की है एंड वी डू नॉट हैव इट्स क्वेश्चनर्स विद अस. अब हमारे इस डाटा शीट के अंदर अगर एरर्स हैं और मिसिंग वैल्यूज हैं, हमने फ्रीक्वेंसीज रन करके वो आइडेंटिफाई तो कर ली हैं, लेकिन अब मैं उनको करेक्ट कैसे करूंगी? मेरे पास क्वेश्चनर तो नहीं है और इनकी करेक्शन किए बगैर मैं आगे मूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी जगह पे 44 है और मेरा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, और अगर मैं पीओएस का जब मीन कैलकुलेट करूंगी तो ये एक इस इतनी हाई वैल्यू की वजह से पूरा मीन मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा. सिमिलरली अगर किसी जगह मेरी मिसिंग वैल्यूज हैं, जैसे ये पीओएस 5 में आ रही है, तो मिसिंग वैल्यूज की वजह से मैं अपने फैक्टर एनालिसिस और अपने बाकी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जब मैं डाटा शीट को इम्पोर्ट करूंगी एमॉस के अंदर, वहां भी मुझे एरर देना शुरू कर देगा मिसिंग वैल्यूज का, राइट. सो उसकी वजह से जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो मैं नहीं कर पाऊंगी. प्लस वहाँ पे मेरी फैक्टर लोडिंग्स के रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं अगर मेरे ये एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर. सो आई नीड टू बी क्लीनिंग द डाटा शीट बिफोर मूविंग ऑन टू एनी एनालिसिस विद इन SPSS एंड आउटसाइड द SPSS. Okay, now let's see how we are going to correct that. We will be going to the transform,
we will recode, use the option number 4, that is recode variable into recode into same variable. That I'm not creating a new variable. मुझे POS 3 के अंदर या 5 के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस 1 2 3 के अंदर जहां भी मिस्टेक्स या एरर्स या मिसिंग वैल्यूज हैं, मैं वहीं पे उनको करेक्ट करना चाह रही हूँ, वहीं पे उनको रिकोड करूंगी, मैं नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रही. Right, so option I'm choosing is recode into same variable. So here I have selected, I have to select all these variables that are problematic. These are POS3, POS5, DJ1, 2 and 4. I am choosing POS3, POS5, distributive justice 1, 2 and 4. And then next I'm having procedural justice 1, 2 and 6. And 6. Next I'm having effective commitment 2 and 4. Effective commitment 2, effective commitment 4, and lastly normative commitment 1. Now you see कि मेरे जितने भी वेरिएबल्स के अंदर प्रॉब्लम्स थे, मिसिंग वैल्यूज या एरर्स, मैंने उन सारों को चूज कर लिया कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, राइट. अब मुझे अगला काम क्या करना है, ये ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, I have to define the new values for these variables where there are errors. Okay, so I'm going to press it and it has opened a new sheet for me. You can see that there is this old value of the variable and I have to define its new value, and then there is system missing as well. If we are going to have any other data which is missing, then that will be treated over here, right. Okay, now first of all values. Now let's come to the errors that we are having and first define them, and then we are going to go for the missing values. First error is 44, 11, 24. So, and also I need to see the Likert scale, and if you recall the Likert scale of these variables are is 5-point Likert scale, right? So, what I'm going to do is that I have to see that what is the middle value for the 5. If I'm having a Likert scale which is having values as 1, 2, 3, 4 and 5. So obviously this middle value is 3. If I'm going to, this is basically the neutral or the average, right? तो जब भी आपने अपनी एरर्स और मिसिंग वैल्यूज कंप्यूटर में या सिस्टम में करेक्ट करनी होती हैं और आपके पास डाटा नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू थी आपके क्वेश्चनर के अंदर, तो आप हमेशा अपने वेरिएबल्स को टैप करते हैं ऑन दी न्यूट्रल और दी एवरेज वैल्यू. उसकी वजह क्या है कि एक तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं, सेकेंडली आप अपने डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप अपने डाटा को अफेक्ट नहीं कर रहे कि आप एग्री की साइड पे या डिसएग्री की साइड पे नहीं जा रहे, आपने वही पॉइंट वही ऑप्शन चूज किया है which is the average or neutral, right? So that's why we are always going to pick the middle value for the errors as well and for the specific missing values as well. Let's say if I had the Likert scale of 3, then I would be picking the 2 as the specific factor. Then if I am having a Likert scale where I am having 7-point Likert scale, so what is the middle value in it? In this case, 4. These 3 and the 3 are going to reflect the disagreement or agreement. This will be the neutral one, the fourth one. So middle value हम लेते ही इसलिए हैं कि हम अपने variables को फिर neutral के ऊपर कोट करते, right? So यहाँ से हमने errors देख लिए अपने, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 44. ओल्ड वैल्यू है मेरे पास 44, इसकी न्यू वैल्यू मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ एज 3 क्योंकि मेरा 5-point Likert स्केल है, उसकी मिडिल वैल्यू 3 बनती है, न्यूट्रल वैल्यू. ओके, द सेकंड फैक्टर दैट आई एम हैविंग इज 11. 11 की भी जो नई वैल्यू मैं डिफाइन कर रही हूँ, मिडिल वैल्यू दैट इज 3.
then I'm having 24 की नई वैल्यू मैंने दोबारा से दे दी 3, इसको भी ऐड कर दिया। इसी तरह अगला मेरा एरर है 33, इसकी नई वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 3। नेक्स्ट मेरे पास है 111, इसकी भी न्यू वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 3। नेक्स्ट मेरे पास है 33, जिसको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, और 11, इसको भी मैं ऑलरेडी 11 की भी ऊपर वैल्यू दे चुकी हूँ और 33 को भी, तो इनको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन कमिंग टू दी मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, अब हम मिसिंग वैल्यू को इसके बाद बताएंगे। सिस्टम मिसिंग, जितनी भी आपकी सिस्टम मिसिंग है उनको भी आपने क्या कर दिया, यू आर रेटिंग देम ऑन 3। मिडिल वैल्यू आपने सिस्टम मिसिंग के लिए भी ले ली, राइट। नाउ यू हैव डिफाइंड, आपके जितने भी एरर्स थे उन एरर्स की आपने नई वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं, मिसिंग वैल्यूज की भी नई वैल्यू डिफाइन कर दी है, और आपने कहा है कि इनको रिकोड करना है इनटू सेम वेरिएबल। देन यू आर गोइंग टू प्रेस कंटिन्यू and then you are going to press OK, right? अब अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज दोबारा रन करें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे डाटा के एरर्स और प्रॉब्लम्स रिमूव हुए हैं या नहीं हुए। सो आई एम गोइंग टू गो टू दी एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज। सारे वेरिएबल्स मैंने एक दफा चेक किए, इनको वापस सेंड करके रीसेंड कर दिया टू रिफ्रेश दी डाटा शीट, ताकि जो हमारे चेंजेस थे वो इसके अंदर आ गए हों। स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगी, मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी सिलेक्टेड है बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग इन द सेम वे। देन आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। नाउ लेट्स सी द समरी। Now this is the analysis that is being run. You can see कि हमने डेमोग्राफिक्स एज के अंदर कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, हमें क्या पता जिस रिस्पोंडेंट ने दिया है उसकी कितनी एज होगी, राइट। सो डेमोग्राफीज मैंने नहीं छेड़ी हैं, मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम द मेन वेरिएबल्स, एंड एज यू कैन रिमेंबर POS 3 के अंदर एरर था। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एरर एंड नो मिसिंग वैल्यू। POS 5 में मिसिंग वैल्यू थी जो नहीं आ रही है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस 1 में था, 2 में था, वो भी एरर खत्म हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस 4 में भी नहीं है। प्रोसीजर जस्टिस 2 के अंदर एरर था, वो भी अब नहीं है। प्रोसीजर जस्टिस 6 के अंदर एरर था, वो भी अब नहीं है। सिमिलरली अफेक्टिव कमिटमेंट 2 एंड 4 के अंदर एरर्स थे, यू कैन सी नाउ देयर इज नो एरर ओवर हियर एज वेल। सिमिलरली नॉर्मेटिव कमिटमेंट में हमारे पास NC1 के अंदर था, एज यू कैन सी दैट देयर इज नो एरर। रैंडमली भी आप चेक कर लें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 and 5 हैं, और मिसिंग वैल्यू हर जगह मेन वेरिएबल्स के अंदर 0 हो गई है। नाउ दिस वाज द स्पेसिफिक स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो टू क्लीन द डाटा शीट। अब हमारी डाटा शीट हमारे इनिशियल फेजेस ऑफ एनालिसिस के लिए रेडी है, राइट। अब जब आपने अपनी रिवर्स अपनी मिसिंग वैल्यूज और एरर्स रिमूव कर लिए, the second important thing that we need to move towards is कि अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, अपने सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, where we are going to see that if there is some reverse item, if there is some reverse question, तो हम इस reverse question को ठीक करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू दी फर्दर एनालिसिस। अब रिवर्स क्वेश्चंस होते क्या हैं? हम बहुत दफ़ा जब हम अपने क्वेश्चनियर्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें आप मेन वेरिएबल से ऑपोजिट बात पूछते हैं, जस्ट टू सी कि जब आपके रिस्पोंडेंट्स डाटा को फिल कर रहे थे तो वर दे अटेंटिव, were they paying attention and focus, were they really reading the statements, understanding the statements and then responding to the statements। तो इसलिए हम अपने रिवर्स क्वेश्चंस जो हैं या क्लिक क्वेश्चंस हम रखते हैं, ये रखे जाते हैं particularly in order to see the quality of data that we have। अब जब हमने रिवर्स क्वेश्चंस रखे हैं तो उन रिवर्स क्वेश्चंस को यूज करने से पहले उन्हें ठीक करना जरूरी होता है। रिवर्स क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहती हूँ कि टर्नओवर इंटेंशंस का स्केल है और उसके 2 क्वेश्चंस ये कहते हैं कि आई एम लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, या दूसरा क्वेश्चन कहता है आई विल बी लुकिंग फॉर न्यू जॉब, राइट। और क्वेश्चन 3 मैंने पूछ लिया। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि I want to leave the job,
दूसरा कह रहे हैं मैं नई जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ या देख रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, आई विल नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ आई हैव द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए पहले दो क्वेश्चन आपने स्ट्रेट पूछे, तीसरा क्वेश्चन आपने ऑपोजिट पूछा है। अब अगर आप जब डेटा एनालिसिस पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले एट पार करना होगा ताकि जो रिस्पॉन्स है सारे क्वेश्चंस का वो सेम डायरेक्शन में, राइट। अब क्योंकि देखें अगर किसी ने डिसएग्री किया है पहले क्वेश्चन पे भी, दूसरे पे भी और तीसरे पे उसने एग्री किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन भी उसने ठीक, ये भी ठीक और ये भी पढ़ के रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उसकी टर्नओवर इंटेंशंस में जो हाई थी। तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो वाला क्वेश्चन आया कि मुझे ऑप्शन भी हुआ तो मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ूंगा, उस पे उसने डिसएग्री के ऊपर रेट किया, राइट। So when we are talking about these kinds of perspectives, they have to be corrected. अब reverse question या RC जो है इसका फॉर्मूला क्या है, राइट। रिवर्स कोडिंग का हमेशा फॉर्मूला ये कि वन नंबर above Likert scale minus variable to be corrected. Now what does it mean? इसका मतलब ये है कि मैं जो भी लिकर्ट स्केल यूज कर रही हूँ उस लिकर्ट स्केल से एक नंबर मुझे ऊपर रखना है और उसमें से माइनस करना है वो वेरिएबल जिसकी रिवर्स कोडिंग मुझे ठीक करनी है या करेक्ट करनी है। नाउ व्हाट इट विल बी लुकिंग लाइक इन एक्चुअल कि जब मैं एक नंबर ऊपर रखूंगी अपने लिकर्ट स्केल से, तो फिर जब मैं वैल्यूज रिवर्स करने पे आऊंगी तो किस तरह से वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा इस क्वेश्चनियर में 5 पॉइंट का लिकर्ट स्केल है, राइट। इट इज फ्रॉम 1 to 5, राइट। तो अब इज राइट, तो मैं क्या करूंगी, मैंने जिस भी वेरिएबल को ठीक करना होगा वो 6 माइनस वेरिएबल टू बी करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप अगर मैथमेटिकल कॉनोटेशन देखें तो व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा डाटा है इसमें कुछ लोगों ने 5 रिस्पॉन्ड किया हुआ है, कुछ ने 4 किया हुआ है, कुछ ने 3 किया हुआ है, कुछ ने 2 किया हुआ है, कुछ ने 1 किया हुआ है। अब जिन क्वेश्चंस रिवर्स क्वेश्चंस में मेरे पास 5 वैल्यू है उसको मैंने क्या करना है, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, 6 minus 2, 6 minus 1, right? 6 minus 5 is 1, 6 minus 4 is 2, 6 minus 3 is 3, 6 minus 2 is 4, 6 minus 1 is 5. अब आप ये देखें जो वैल्यू मेरी 5 है जब मैं रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो वो 1 हो जाएगी, राइट। जो मेरी वेरिएबल की वैल्यू 4 है जब मैं रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो वो 2 हो जाएगी। जो 3 है वो 3 ही रहेगा बिकॉज इट्स द एवरेज और द न्यूट्रल। इसी तरह से जो मेरे वेरिएबल की वैल्यू 2 है वो जब मैं रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला डालूंगी तो वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरी वैल्यू 1 है जब मैं रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला डालूंगी तो वो 5 हो जाएगा। यानी कि 1 चला गया 5 पे, 5 चला गया 1 पे, 4 चला गया 2 पे, 2 चला गया 4 पे, राइट। सो इसीलिए हम एक नंबर अपने लिकर्ट स्केल से ऊपर रखते हैं। अगर आपका लिकर्ट स्केल है लेट से 7 का तो फिर आप क्या करेंगे, 8 माइनस वेरिएबल। अगर आपका लिकर्ट स्केल है 3 का तो फिर आप करेंगे 4 माइनस वेरिएबल। सो इट इज टोटली गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपका लिकर्ट स्केल क्या है जिनके अगेंस्ट आपने अपने क्वेश्चन को टैप किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने इन फैक्टर्स को शेप अप करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, राइट। So this is the main formula that we are going to basically have. अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास अब जिस वेरिएबल को मैंने करेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आई हैव टू फर्स्ट सी कि मेरे कौन कौन से जो हैं वो वेरिएबल्स में रिवर्स फैक्टर्स हैं। आई एम गोइंग टू गो टू द वेरिएबल व्यू एंड आई एम गोइंग टू सी कि मेरे पास कोई रिवर्स क्वेश्चन है या नहीं है। एज यू कैन सी दैट आई एम हैविंग POS 6 R and POS 7R, ये दो रिवर्स क्वेश्चंस हैं। इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है, नीचे भी देख लेते हैं।
हाँ जी, नीचे भी कोई नहीं है, राइट? सो वी आर ओनली हैविंग टू रिवर्स कोडेड क्वेश्चंस, दैट इज POS 6R एंड POS 7R. ये दो क्वेश्चंस को यूज करने से पहले मुझे इनकी रिवर्स कोडिंग को ठीक करना पड़ेगा. अब मैं इनकी रिवर्स कोडिंग कैसे ठीक करूंगी? आई एम ऑल्सो गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द लिकर्ट स्केल दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. 5 का लिकर्ट स्केल है और रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 1 नंबर अबव द लिकर्ट स्केल. 1 नंबर अबव विल बी 6 और इसमें से माइनस करूंगी वो वेरिएबल जिसकी रिवर्स कोडिंग ठीक करनी है, जिसको करेक्ट करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगी 6 माइनस POS 6R, राइट? अब मैं ये कैलकुलेट कैसे करूंगी? आई एम गोइंग टू गो टू द ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल. यहाँ पे मेरा POS 6 जो है नया नाम मैंने रखा है, इसका पुराना नाम क्या है? POS 6R, राइट? तो 1 नंबर अबव लिकर्ट स्केल 5 का था, 6 माइनस POS 6R, the variable which has to be corrected, वो मैंने ले लिया. आई एम गोइंग टू प्रेस OK. नाउ इफ यू गो टू द डेटा शीट एंड वी ऑब्जर्व, तो हमारे पास POS 6 के अंदर, अगर आप यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सेज याद रखिएगा, POS 6 में पहले क्वेश्चन में 4 है, 5 है, 2 है, 5 है, राइट? So now let's go and see. 4 जो है वो कन्वर्ट हो गया 2 में, 5 1 में हो गया है, 2 4 में हो गया और 5 जो आ रहे थे आपके पास वो आप यहाँ पे 1 में हो गए. So बजाय इसके कि आप एक क्वेश्चन को, एक रिस्पॉन्स को आप अलग अलग ठीक करते, जब आपने रिवर्स कोडिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसने आपके इस पूरे वेरिएबल की रिवर्स कोडिंग को करेक्ट कर दिया है, राइट? दोबारा जाऊंगी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल. आपकी आसानी के लिए, आपकी याददाश्त के लिए इसको रीसेट कर रही हूँ. अब मेरा अगला वेरिएबल जो करेक्ट होना है ये POS 7R है. इसका मैंने नया नाम रखना है बिकॉज सेम रखा POS 7. इसका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर जाके 5 का लिकर्ट स्केल है तो मैंने किया 6 माइनस POS 7R, इसको यहाँ पे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में भेज दिया. अब मैं प्रेस करूंगी ओके एंड देन आई एम गोइंग टू सी कि मेरे पास ये देखिए POS 7R जो है ये भी क्रिएट हो गया है, विच इज द करेक्टेड वन. अब आपने जब ये वाला एनालिसिस कर लिया तो अगला काम हमने जो करना होता है वो हमने अपने वेरिएबल्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है, राइट? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों चीजें चेक करनी होती हैं हमने जब अपना एनालिसिस करना होता है. रिलायबिलिटी SPSS में ही हम चेक करते हैं, जबकि वैलिडिटी के लिए हम AMOS का सॉफ्टवेयर यूजुअली यूज करते हैं और वहां पे हम CFAs के थ्रू उसको इस्टेब्लिश करते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम फर्स्ट गोइंग टू डू द रिलायबिलिटी एनालिसिस विद यू, और उसके बाद फिर हम जो है जब AMOS के ऊपर जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर जब हमारा SPSS का पूरा हो जाएगा फिर AMOS के अंदर जाके मैं आपको करवा दूंगी आपके वैलिडिटी टेस्ट भी, right? So now let's first see that what are the steps that we have to do for the analysis of the reliability. इसके लिए आपने जाना है analyze, scale and reliability analysis, right? हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट जो मेनली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि पूरे क्वेश्चन की एक रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं. पूरे क्वेश्चन की एक रिलायबिलिटी हो ही नहीं सकती. आपने अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए हैं और हर वेरिएबल के लिए आपने अलग क्वेश्चनियर यूज किया है. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द होल रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनियर एज अ सिंगल रिलायबिलिटी? आपका इफेक्टिव कमिटमेंट अलग वेरिएबल है, आपका नॉर्मेटिव कमिटमेंट अलग वेरिएबल है, आपका POS एक अलग वेरिएबल है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अलग वेरिएबल है, आपका प्रोसीजरल जस्टिस अलग वेरिएबल है और इनके आइटम्स अलग थे, इनके क्वेश्चंस अलग थे. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट कि आप इन सारों को इकट्ठा डाल के और एक ही रिलायबिलिटी चेक कर लें? तो आपको रिलायबिलिटी वेरिएबल वाइज चेक करनी है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मेरे पास आ गया POS, राइट? POS के यू कैन सी दैट आई हैव एंटर्ड ऑल द आइटम्स. अब ये जो रिवर्स वाले क्वेश्चंस हैं ये यूज नहीं होंगे. इनका जो मैंने करेक्टेड वाले आइटम्स यूज किए हैं POS 6 एंड 7 के, मैं वो डालूंगी, राइट? करेक्टेड वाले मेरे पास ये एंड पे गिवन है, ये मैंने ऐड कर लिए. ये हमने रिवर्स कोडिंग पहले ठीक ही इसलिए की है कि हम सारे वेरिएबल्स की डायरेक्शन को सेम कर रहे थे, दैट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो इस वजह से हमने जो रिवर्स वाले क्वेश्चन थे उनको पहले करेक्ट कर लिया. अब यू कैन सी दैट आई हैव मूव्ड ऑल दीज आइटम्स and then from the statistics I'm going to choose two things, scale
and scale if item deleted. Scale is going to give me the overall reliability और scale if item deleted कि let's say हमने जब डाटा कलेक्शन की तो उसमें सारा डाटा खराब नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जो लोगों को समझ नहीं आए, तो हम वन बाय वन उनको रिमूव करके अपनी रिलायबिलिटी देख लेते हैं. अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिलायबिलिटी खराब आ रही हो तो वो हम इन आइटम्स को रिमूव करके चेक कर सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है. राइट, तो मैंने चेक किया scale if item deleted, continue, and then I'm going to press OK. Now it has run the reliability over here. Now before moving on to these specific factors, let's see कि हमारी reliability जो है इसकी क्या different ranges होती हैं and how do we basically contend or what does this reliability tells us. राइट, रिलायबिलिटी हमारी ज़्यादातर जो हम कॉमनली रिलायबिलिटी चेक कर रहे होते हैं ये हमारी होती है क्रॉनबैच अल्फा. ये जो क्रॉनबैच अल्फा रिलायबिलिटी है इसकी जो रेंज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.65 एंड इट कैन गो अप टू 0.99. राइट, अब ये जो स्पेसिफिक हम रेंजेस की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मिनिमम 65% रिस्पोंडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे वेरिएबल में एग्जिस्ट कर रही है तो हम तब मूव करते हैं. कुछ स्टडीज आपको ये भी कहती हैं कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0.60 एज वेल. राइट, कुछ स्टडीज आपको कहती हैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0.70 इंस्टेड ऑफ 0.65 और 0.60. राइट, सो डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं इसमें, लेकिन मिनिमम जो हम थ्रेशोल्ड पे जाते हैं वो 0.60 एंड अबव पे जाते हैं. राइट, जितना ज्यादा आप 0.60 से ऊपर मूव करते हैं 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.81, 0.82 up till 0.99, the reliable instrument is considered to be more reliable. राइट, अच्छा, अब ये रिलायबिलिटी होती क्या है? रिलायबिलिटी है आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि आपकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी रिगार्डिंग दो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. राइट, रिपीटेडली consistently the individuals were having the similar understanding. याद रखें, मैं सिमिलर रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रही, मैं सिमिलर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस किया था where you were talking about that I'm likely to leave this organization, I'm looking for a new job, I'm not going to leave this organization even if I have the opportunity. अब ये जो तीनों क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ इनको सुन के आपके जहन में क्या यही चीज आ रही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने या छोड़ने की बात कर रहे हैं? इफ यस, देन इट मीन्स दैट द रिस्पोंडेंट्स आर हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग. हाँ, उसका रिस्पॉन्स वेरी करेगा आप लोगों में. कुछ लोग एग्री करेंगे दैट दे रियली वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लुकिंग फॉर द न्यू जॉब, और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे. लेकिन कुछ लोग हैं वो इससे डिसएग्री करेंगे. कुछ लोग हैं जो ये रिस्पॉन्स देंगे दैट न्यूट्रल, नॉट एग्री नॉट डिसएग्री, कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि टर्नओवर इंटेंशंस या टर्नओवर भी जो कोई फैक्टर होता है, सो दे डिड नॉट गिव इट अ थॉट, सो दे आर नॉट श्योर और सर्टन कि वो नई जॉब देखेंगे या दे विल बी लुकिंग फॉर न्यू जॉब और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या करेंगे. राइट, सो रिलायबिलिटी हमें बताती है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी को. इट एक्सप्लेन्स यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दैट रिपीटेडली व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रिंग सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर द रिस्पोंडेंट्स, they are understanding the questions in the same way. Their response will always be different, but their understanding is shared. राइट, और कितने परसेंट लोगों की कम से कम 0.60 यानी कि 60% डाटा जो है उसमें अगर लोग जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग सिमिलर है अबाउट दैट रिस्पॉन्स, अबाउट दैट क्वेश्चनियर, अबाउट दैट आइटम, तो ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ये रिलायबल कंसिडर होगा. एनीथिंग बिलो 0.60 हैज टू बी इम्प्रूव्ड. उसमें या तो आप अपनी डाटा कलेक्शन दोबारा करते हैं या फिर आप अपने डाटा के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि जो क्वेश्चनियर्स आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, जिनमें आपको रिस्पॉन्स लग रहा है कि लोगों ने पढ़ के नहीं फिल किया हुआ, देख के पता चल रहा है कि क्वेश्चनियर में डाटा ख़राब है, आप उनको डिलीट कर देते हैं फ्रॉम डाटा शीट टू इम्प्रूव योर रिलायबिलिटी. सिमिलरली जैसे कोई एक आधा क्वेश्चन होता है उसकी वजह से अगर आपकी रिलायबिलिटी ख़राब आ रही है तो आपने जो ऑप्शन चूज़
किया था स्केल इफ आइटम डिलीटेड, आप वहाँ पे जाके चेक करके अपने वेरिएबल्स की रिलायबिलिटीज को बेहतर कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द रिजल्ट्स दैट वी आर हैविंग. एज यू कैन सी that the reliability that we are having over here is not within the range. हमने कहा था 0.60 या 0.65 and above, तो ये तो reliability बहुत कम आ रही है. It is 0.345, and as you can see from here that the reliability if any of these item is being removed तो मजीद drop होती है, except ये जो POS 6 है और POS 7 है. अगर मैं POS 6 को निकालती हूँ तो रिलायबिलिटी मेरी 0.345 से 0.525 तक चली जाएगी. सिमिलरली अगर मैं POS 7 को निकालती हूँ तो ये मेरी रिलायबिलिटी 0.345 से 0.529 तक हो जाएगी. Another thing that tells us that the item is problematic is you can see that there is a negative sign with these values. इसका मतलब ये है कि जो मेरा डाटा था ये लोगों ने इतना पढ़ के फिल नहीं किया, तो जहाँ पर रिवर्स क्वेश्चन से उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया. तो ये जो आइटम्स थे, आइटम 6 and 7, POS 6 and 7, दे आर अपियरिंग टू बी नेगेटिवली रिलेटेड विद द मेन वेरिएबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. अगर मेरा एक क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उसी वेरिएबल को अगर टैप करें तो दे शुड बी रिफ्लेक्टिंग इट. तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. आप देखें बाकी सारे आइटम्स पॉजिटिवली रिलेटेड हैं एक्सेप्ट दीज टू रिवर्स क्वेश्चंस जिनको हमने करेक्ट किया था, इनका नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है विद द स्केल, राइट. तो ये भी एक इंडिकेशन होता है दैट योर आइटम्स आर प्रॉब्लमैटिक एंड दे नीड टू बी रिमूव्ड. अच्छा, अब रिमूव करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसे एनालिसिस से रिमूव करेंगे. इट डज नॉट मीन कि आपने डाटा शीट से ही जाके POS 6 और 7 को डिलीट कर दिया. आप जो एनालिसिस करें उस एनालिसिस में से आप रिमूव करेंगे. अब इसको कर लेते हैं एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, और इसमें से मैंने POS 6 को पहले निकाल दिया. And now let's see what is the reliability. The reliability has improved from 0.345 to 0.525. अब अगर आप देखें कि इसमें से अगर मैं ये POS 7 भी निकाल देती हूँ तो मेरी रिलायबिलिटी 0.525 से 0.687 पे चली जाएगी. So analyze, scale and reliability analysis. तो यहाँ से मैंने POS 7 भी रिमूव कर दिया. अब मैं रिलायबिलिटी चेक करूँ तो मेरी रिलायबिलिटी जो है इट इज़ 0.687, which is now in the acceptable range, right? Similarly मैं अगले स्केल की रिलायबिलिटी चेक कर लेती हूँ. स्केल, एनालाइज और रिलायबिलिटी एनालिसिस. डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस के चारों आइटम्स ले लिए मैंने, एक ही गो में चेक कर रही हूँ. तो स्टैटिस्टिक्स में स्केल और स्केल इफ आइटम डिलीटेड चेक्ड है. कंटिन्यू प्रेस करूंगी एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके. Now you can see that distributive justice has a reliability of 0.733, which is in the acceptable range. So there is no requirement of deleting any particular. और वैसे भी क्वेश्चंस डिलीट करना is not considered to be a healthy practice, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो खराब हो जाती है, यानी कि इनकम्प्लीट हो जाता है आपका वेरिएबल जब आप उसमें से आइटम्स को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से. अब मैंने प्रोसीजरल जस्टिस के सारे आइटम्स डाल लिए एंड लेट्स सी द प्रोसीजरल जस्टिस की आपकी 0.817 रिलायबिलिटी आ रही है. फिर हमने अगले वेरिएबल की चेक कर लेते हैं. अफेक्टिव कमिटमेंट, इसकी भी 0.618 है. मीन्स के मार्जिनल बॉर्डर लाइन पे है क्योंकि 0.60 एक्सेप्टेबल है. सो वी विल कंटिन्यू विद इट. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग नॉर्मेटिव कमिटमेंट. इसके आइटम्स डाल लिए. इसकी भी रिलायबिलिटी बॉर्डर लाइन पे है 0.602. नेक्स्ट एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस, और यहाँ पे हमने नॉर्मेटिव कमिटमेंट हटा के कॉन्टिन्यूअस कमिटमेंट के आइटम्स ले लिए. और इसकी रिलायबिलिटी है 0.750. सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. एक रिलायबिलिटी हम और चेक कर लेते हैं क्योंकि ये कमिटमेंट का वेरिएबल है, तो हम ओवरऑल कमिटमेंट को भी देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल आपकी कमिटमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है.
तो मैंने कमिटमेंट के कॉन्टिन्यूस, नॉर्मेटिव और अफेक्टिव सबके आइटम्स ले लिए, इनको सेंड किया और एक एग्रीगेट रिलायबिलिटी देखी कमिटमेंट की। तो एग्रीगेट रिलायबिलिटी यू कैन सी इज मच बेटर देन द इंडिविजुअल डायमेंशंस रिलायबिलिटी, जो कि हमारी 0.60 बॉर्डर लाइन पे आ रही है। सिमिलरली जस्टिस की भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जस्टिस की ही दो टाइप्स हैं। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोसीजरल जस्टिस में जाने के बजाय एग्रीगेट अगर इसको करना हो तो क्या वो पॉसिबल है? सो लेट्स सी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के 4 क्वेश्चन और प्रोसीजरल जस्टिस के 7 क्वेश्चंस ये हमने एंटर किया और इसकी भी रिलायबिलिटी देख लेते हैं। तो ओवरऑल रिलायबिलिटी इस स्केल की भी अच्छी है, इट इज 0.84 विच इज वेरी गुड, राइट। अब हमने रिलायबिलिटी चेक कर ली है अपने वेरिएबल्स की। अब हम अगला काम जो करेंगे वो हम अपने वेरिएबल्स का मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकालेंगे, राइट। अच्छा, अब मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल में मैंने रीसेट कर दिया। यहाँ से मैंने या तो ऑल सेलेक्ट कर लें फंक्शन ग्रुप से, या दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो आप स्टैटिस्टिकल ले लें। तो ये देखें, जब मैंने स्टैटिस्टिकल लिया है तो इसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है मीन, इसका मैंने फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया ऊपर। अब ये मुझे क्या फॉर्मूला बता रहे हैं कि मीन लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट क्वेश्चन कोमा क्वेश्चन, राइट। इसकी फुल डिस्क्रिप्शन भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। यू कैन सी दैट दे आर टेलिंग यू कि मीन कैलकुलेट करने के लिए आप मीन लिख के स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ यू कैन ऐड द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वेरिएबल और फिर आप उसकी मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं यूएस का, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का। इसमें लेट से मैंने कहा, इसका नाम मैंने रख दिया पीओएस ओनली, राइट, क्योंकि आइटम्स जो थे उनके साथ 1 2 3 लगा हुआ था, तो मैंने इसका सिंपली पीओएस रख दिया। अब जब मैं क्वेश्चंस ऐड करूंगी तो मैंने पीओएस 1 कोमा पीओएस 2 कोमा पीओएस 3 कोमा पीओएस 4 कोमा पीओएस 5 कोमा पीओएस 8। अब अगर मेरी आप ये देखें, ये रिवर्स वाले क्वेश्चंस तो मैं ले ही नहीं रही। दूसरा, इनके जो करेक्टेड वाले हैं वो भी मैं देती अगर वो मेरी रिलायबिलिटी को खराब ना कर रहे होते। इस केस में, प्रेजेंट केस में डाटा के अंदर पीओएस 6 एंड 7 की वजह से रिलायबिलिटी खराब हो रही थी पीओएस की, और आपको याद होगा कि हमने इन दोनों आइटम्स को एनालिसिस से रिमूव किया था। तो जिन आइटम्स को आप रिलायबिलिटी की स्टेज पे या वैलिडिटी की स्टेज पे रिमूव कर देते हैं उनको आगे भी कहीं भी कंसिडर नहीं करते, right? So POS 6 and 7 में नहीं करी, POS 1, 2, 3, 4, 5 and POS 8। अब POS 8 मेरा लास्ट वेरिएबल का आइटम है, इसके बाद मैंने कोमा नहीं डालना, ब्रैकेट मेरी क्लोज हो गई and I'm going to press OK. Now you can come and see that this is the mean of the POS that has been calculated for each of the specific factors। इसने POS 1 से लेके POS 6 के आइटम्स को ऐड, POS 5 तक और फिर 8 का आइटम ऐड करके आपको कैलकुलेट कर दिया मीन। तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं अगले वेरिएबल के लिए, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, राइट। आपके आसानी के लिए मैं इसको रीसेट करती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल में से मैंने मीन चूज किया, इसका फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया, क्वेश्चन कोमा क्वेश्चन, मीन के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स में। लेट्स कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, DJ1 कोमा DJ2 कोमा DJ3 कोमा DJ4। नाउ दीज आर द 4 आइटम्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका मैंने नया नाम रखा, जिसका मैंने DJ इसका नाम रख दिया इंस्टेड ऑफ आइटम्स एज 1 2 3 ऑनवर्ड्स, राइट। ये मैंने यहाँ पे इसके आइटम्स रखे, फिर मैंने प्रेस कर दिया ओके। Now you can come and see that the mean of the distributive justice has also been calculated. Similarly, मैं अगले वेरिएबल का करूँगी, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पे now instead of going for the distributive justice, अब मैं procedural justice के आइटम्स ऐड करूँगी, PJ1
PJ2, 3, 4, 5, 6, 7 और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को मैंने चेंज कर दिया प्रोसीजरल जस्टिस पीजे के साथ, राइट. सो आई हैव एंटर्ड ऑल माय आइटम्स, already mean selected tha, and I'm going to press OK. Now you can see that we are having the mean of our procedural justice as well, right? You can see over here procedural justice का भी mean calculate हो गया, right? So इसके बाद हमने अपने अगले वेरिएबल्स का मीन कैलकुलेट करना है. तो I'll be moving towards my other data sheet जिसमें मेरे मीन्स कैलकुलेटेड हैं. मैं वो इसलिए ओपन कर रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, लेकिन आपको मैंने जैसे सिखा दिया है तो आपने इसी तरह से अपने जो है वो स्पेसिफिक मीन्स कैलकुलेट कर लेने हैं, राइट. ये मैंने डाटा शीट खोली है, इसके अंदर मेरी रिवर्स कोडिंग भी हुई है और ये POS 67 जो रिवर्स कोडिंग थी वो भी हुई है. मीन्स भी कैलकुलेटेड है मेरे अफेक्टिव, नॉर्मेटिव और कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट के, प्रोसीजरल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, POS के, राइट. अब मैंने जो अगला काम करना है वो ये करना है, वंस आई हैव कैलकुलेटेड द मीन्स ऑफ द वेरिएबल्स, अब मैंने देखना है कि मेरे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है वो कितना प्योर है. उसमें कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है जो उनके रिलेशनशिप में इंटरवीन कर रहे हों, इंटरफेयर कर रहे हों, राइट. So I will be checking for the extra variables that are basically going to change the domain or the specific input of my factors. तो ये जो specific मेरे variables हैं मैं इनको identify करूँगी and I will be controlling them. तो सबसे पहले जब आपने जो अपने variables हैं, control factors हैं, उनको identify करना होता है तो उसके लिए हम एक test use करते हैं which is being referred as the ANOVA. ये अनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये क्या चीज़ है. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अनोवा में हमें पता चलता है, इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, कि हमारा जो एक वेरिएबल है उसका दूसरे के ऊपर सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट किस टाइप का इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, राइट. हम यूजुअली प्राइमरी डाटा के अंदर जो डेमोग्राफीज होती हैं उनके ऊपर अनोवा एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है उसको रन करते हैं, सो दैट we can get to know that the variables that we are having at hand, how these variables basically operate, और क्या हमारे मेन वेरिएबल के अलावा कोई डेमोग्राफिक फैक्टर्स तो नहीं है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहे हैं. तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको देख लेते हैं कि इनमें से जिनका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेंगे. तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, अपनी वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस की या पी वैल्यू की 3 रेंजेस होती हैं. इट हैज़ 0.001, it is 0.01 and it is 0.05. This usually comes with the 3 stars, this usually come with the 2 stars and this comes with the single star 0.05. अब इसका मतलब क्या है, ये जो पहली वैल्यू है it is reflecting the highly significant relationship, right. ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको बता रही है कि रिलेशनशिप इज हाईली सिग्निफिकेंट. यू आर श्योर 99.99% दैट रिलेशनशिप इज देयर, राइट. ऑन द अदर हैंड ये जो 0.01 है इसका मतलब है कि 99% यू आर श्योर अबाउट द रिलेशनशिप एंड देयर आर ओनली चांसेस ऑफ 1%. इसका मतलब ये है कि 95% यू आर श्योर दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द फैक्टर्स एंड there are 5% chances of error. कोई भी values which are higher than 0.05 they will be considered as insignificant. Sometimes borderline के ऊपर हम 0.10 तक यानी कि 10% तक हम ले लेते हैं,
0.10 तक अगर आपकी आ रही है सिग्निफिकेंस की रेंज, इसका मतलब ये होता है कि 90% देयर आर चांसेस ऑफ रिलेशनशिप और 10% चांसेस ऑफ एरर्स हैं। तो वहाँ तक कुछ लोग बॉर्डर लाइन के ऊपर इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी वीक सिग्निफिकेंस है, दैट माइट वर्क। लेकिन जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, दे आर वेरी क्लियर एंड वेरी रिजिड अबाउट दीज एनालिसिस एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिलो दिस 0.05, राइट। और इसको वो बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्निफिकेंस की रेंजेस आती हैं विच आर 0.001, विच आर 0.05 एंड विच आर 0.01 एंड देन 0.05, 0.01 एंड 0.05, इसको वो हाईली सिग्निफिकेंट कहते हैं, इसको सिग्निफिकेंट कहते हैं, इसको मॉडरेट सिग्निफिकेंट कहते हैं, और एनीथिंग लाइक आपका 0.06 है, 0.07 है, 0.08 है, 0.09 है और 0.10, ये तो आपकी आ गई वीक सिग्निफिकेंस, राइट। अच्छा, अब 0.11 से लेके up till if you go to the 0.99, ठीक है, तो ये जो है 0.11 से लेके 0.99 तक इट इज रेफर्ड एज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान नहीं है, राइट। अब ये देख लें 0.001 जो है, इसके बाद आपका 0.002 हो सकता है, 0.003 हो सकता है एंड ऑनवर्ड्स। तो ये डिफरेंट इसके दरमियान में रेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं, राइट। 001 जो है, इसके बाद 0.002 हो जाएगा, 0.003, 0.004, ये सारी वैल्यूज इसके इन बिटवीन ही आती हैं, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009 और फिर 0.010, ये आ गई हमारी अगली रेंज। तो इस रेंज और इस रेंज के दरमियान, यानी कि जो ट्रिपल स्टेरिक है आपकी, ये वाली जो वैल्यूज है वो आ रही है। इसी तरह से 0.02, 0.03, 0.04 और फिर आपकी आ गई अगली वैल्यू विच इज रेफर्ड एज 0.05, जो कि आप ले रहे हैं एज 1.1। इसके बाद 0.06 हो जाएगी, 0.07 हो जाएगी, 0.08, 0.09, 0.10। इसको बॉर्डर लाइन पे आपने इस तरह के सिंबल से इसको शो करते हैं और ये वीक सिग्निफिकेंस हो जाएगी। और 0.11 से लेके हमने कहा 0.99 तक ये आपकी आ जाएगी इनसिग्निफिकेंट, राइट। तो अब हमने सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रन करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं जो आ रहे हैं। We are going to go to the analyze. Compare means one way ANOVA, right? अब यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट की लिस्ट है, हम सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें इकट्ठे डाल लेते हैं। हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे 3 हैं, which are being referred as affective commitment, normative commitment and continuous commitment. जो commitment का वेरिएबल है ये मेरा DV है। ये कैसे मेरा DV है? Let's make a framework over here. Let's say जो मेरा मॉडल मैं बना रही हूँ, मेरा मॉडल ये है कि POS leads to procedural justice, that leads to affective commitment, normative commitment and continuous commitment. और इसी तरह से मैंने कहा POS leads to the distributive justice, which ultimately leads to these 3 outcomes. ये मेरा independent variable है, ये मेरे 2 mediators हैं और ये मेरा आ गया 3 DVs, राइट, DV1, DV2, DV3। ये मेरा आ गया एक
मीडिएटर ये दूसरा, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट्स से मेरा ये मॉडल है जिसको मैंने टेस्ट करना है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये मेरे क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कि मैं चेक करना चाह रही हूँ कि पीओएस जो है वो कैसे अफेक्ट करता है इन तीनों वेरिएबल्स को, और पीओएस जो है वो प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से होके इन तीनों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आई डू नॉट वांट टू सी द इम्पैक्ट और द इफेक्ट ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो मैं क्या करूँगी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रन करूंगी विद माय टीवीज टू सी कि मेरी कोई डेमोग्राफी जो है वो मेरे स्पेसिफिक मेन डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो मैं जो वेरिएबल मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेमोग्राफीज में रिलेटेड होगा, मैं उस डेमोग्राफिक वेरिएबल को कंट्रोल करूंगी, राइट। वो कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम एक अगली स्टेज पे जाके देखेंगे, लेकिन पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं वेदर वी हैव एनी कंट्रोल्स और नॉट। तो मैं क्या करूंगी, आई विल बी गोइंग टू दी एनालाइज। एनालाइज में से मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ ताकि आपको स्टेप्स याद रहें। मैं जा रही हूँ एनालाइज पे, कंपेयर मीन्स एंड वन वे अनोवा। यहाँ पे मैंने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेरे इस अभी के बनाए हुए मॉडल के अकॉर्डिंगली अफेक्टिव कमिटमेंट, नॉर्मेटिव कमिटमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस कमिटमेंट, ये तीनों फैक्टर्स मैंने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए। यहाँ फैक्टर के कॉलम में आप मुझे वन के साथ चेक करती हूँ कि जेंडर मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने जाना होता है पोस्ट हॉक एनालिसिस में, और यहाँ पे ये टकी टेस्ट एक आपके नाम से दो टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए, टकी बी एंड टकी। जो सिंपल वाला टकी टेस्ट है इसको हमने चूज कर लिया, और फिर आप प्रेस करेंगे कंटिन्यू एंड फिर आप प्रेस करेंगे ओके। नाउ टकी टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं बेसिकली ओके, सो वो ये कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल है वो टेक्स्ट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। सो लेट्स गो और हम अपने वेरिएबल की जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इफेक्टिव कमिटमेंट में। Apparently, so there is no error in the effective commitment, but it's still not running it. Okay, let me remove the effective commitment. मैं बाकी दोनों के लिए run करके देखती हूँ। ये इसका error हम बाद में देख लेंगे because we are having short of time in the class. So one way ANOVA. Oh, so there is some issue in the analysis. ये इसको run नहीं कर रहा है। Let me go back to the other data sheet. वहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ये data sheet read नहीं हो कर रहा इसको। So let's remove it. ये वेरिएबल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेट मी गो बैक एंड ओपन अप द अदर डाटा शीट। Let's say I'm not going to open this data sheet. ये मेरे पास एक और डाटा शीट पड़ी है, इसमें मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं आई एम हैविंग एंड जॉब परफॉर्मेंस, राइट। ये मेरे पास आ गए और ये आ गया क्रिएटिव परफॉर्मेंस CP।
राइट। तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ। एनालाइज कंपेयर मीन्स वन वे अनोवा, मैंने ले लिए अपने स्पेसिफिक टर्नओवर इंटेंशन, कमिटमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए। और अब फैक्टर्स में वन बाय वन जाके मेरे पास इस डाटा शीट के अंदर एक तो जेंडर है, इसको चेक कर लेती हूँ। पोस्ट हॉक में से जाके मैंने चूज करना है टकी टेस्ट, कंटिन्यू प्रेस करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। नाउ यू कैन सी that the significance is showing us that the values are not significant, right? ये 0.14 है, 0.65 है, 0.95 है, 0.53 है। और हमने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंस की रेंज 0.001, 0.01 या 0.05 के दरमियान होनी चाहिए है, राइट? सो द फर्स्ट वेरिएबल दैट वी आर हैविंग ओवर हियर इज तो जेंडर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहा, राइट? अब जेंडर को मैं रिमूव करके अगली डेमोग्राफी डाल दूंगी, एज। एज का इम्पैक्ट देख लेते हैं। एज यू कैन सी ये एज आपकी सिग्निफिकेंट आई है, अदरवाइज बाकी सब के लिए ये इनसिग्निफिकेंट आई है, 0.23, 0.13, 0.40, राइट? तो एज सिर्फ हमारी टर्नओवर इंटेंशन के केस में सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है, सो एज हैज टू बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एज के बाद एजुकेशन। एजुकेशन में यू कैन सी दैट एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर जॉब परफॉर्मेंस 0.002, राइट? अदरवाइज ये 0.08 भी बॉर्डर लाइन पे है, इसको स्किप किया जा सकता है। सिमिलरली एनालाइज कंपेयर मीन्स वन वे अनोवा। अब एजुकेशन के बाद हम अपना लास्ट वेरिएबल जो डेमोग्राफी का है इस डाटा शीट में वो ले लेते हैं एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के लिए काउंट कर लेते हैं। एक्सपीरियंस में यू कैन सी दैट इट इज सिग्निफिकेंट फॉर टर्नओवर इंटेंशंस एंड दिस कमिटमेंट 0.059, राइट? इन दो वेरिएबल्स के लिए ये आपका जो रिलेशनशिप है ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब जो वेरिएबल्स, अब मैं अपने पास यहाँ पे लिस्ट डाउन करती जाऊंगी वर्ड में, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि मेरे जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? अब अगर मैं जाके वापस इनको देखूंगी और वहां से निकालती जाऊंगी, अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास आया है द रिजल्ट्स आर शोइंग कि आपका जो रिलेशनशिप है एक्सपीरियंस में वो टर्नओवर इंटेंशंस के लिए और आपका जो कमिटमेंट है इसके लिए सिग्निफिकेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये जो डिटेल में जो हमने टकी का ऑप्शन चूज किया था, टकी बेसिकली अगर आपके कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैटेगरी कंट्रोल होनी है, ये आपको कैटेगोरिकल की डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। अब क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस जो टैब किया हुआ है इस क्वेश्चन 0.70, ये भी इनसे 0.76, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये 0.03, दिस इज सिग्निफिकेंट। सो मुझे कंट्रोल करना है 1 ईयर वर्सेस मोर देन 10 ईयर्स, राइट? तो मेरी कैटेगरी बन रही है, सबसे पहले जो मेरा आ रहा है एक्सपीरियंस 1 ईयर्स 10 ईयर्स, ये मैं अपने पास पहले लिखती जा रही हूँ। सेकेंड अगर हम देखें तो 5 ईयर्स जो है दैट हैज ओनली, बाकी सब में सिग्निफिकेंट है। 10 ईयर्स तो अब मेरा 1 ईयर्स भी
नो इसके अगेंस्ट हमने करने हैं 10 ईयर्स के अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, और मोर देन 10 ईयर्स के अगेंस्ट करना है, राइट। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, मोर देन 5 ईयर्स जो है इट हैज टू बी कंट्रोल्ड फॉर 1 ईयर। ये हम ऑलरेडी ऊपर भी नोट कर चुके हैं, एंड इट हैज टू बी कंट्रोल्ड फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 ईयर्स, 5 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स के लिए इसको हमने कंट्रोल करना है। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास कमिटमेंट के केस में। कमिटमेंट के केस में 1 ईयर हैज टू बी कंट्रोल्ड फॉर, यू कैन सी, मोर देन 10 ईयर्स। वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि 1 ईयर हैज टू बी कंट्रोल्ड अगेंस्ट दी मोर देन 10 ईयर्स। सेकेंड देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे हमारा 5 ईयर्स किसी कैटेगरी के लिए कंट्रोल नहीं होगी, 10 ईयर्स भी नहीं करनी है। अच्छा, मोर देन 10 ईयर्स अगेन वो 1 ईयर के लिए होगी, जो हम आगे नोट कर चुके हैं। इसी तरह से जॉब परफॉर्मेंस में देख लेते हैं। जॉब परफॉर्मेंस में यू कैन सी दैट एस्पेक्ट्स परफॉर्म कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जो कंटीन्यूअस वेरिएबल होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, आप उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं, जैसे इस केस में इन्होंने एक्सपीरियंस की भी कैटेगरी बनाई हुई है, तो वहाँ पे फिर हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हम अनोवा एनालिसिस जब रन करते हैं, चूज किया था, तो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि तो हर वेरिएबल में आपने देखा था 1 ईयर वर्सेस 10 मोर देन 10 ईयर्स, या 5 ईयर वर्सेस मोर देन 10 ईयर्स आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मोर देन 10 ईयर्स की एक डमी बना लूं, जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते, उनके लिए आपको डमी जनरेट करनी पड़ती है। डमी कैसे जनरेट की जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन डमी वेरिएबल होता क्या है। डमी वेरिएबल ये होता है कि मैं अपने जो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं इनको लेबल कर देती हूँ एज स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ मैंने, मेरे पास ना 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, एक 0 और एक 1। ये जो 0 है ये नल ग्रुप होता है, और ये जो है ये सिग्निफिकेंट ग्रुप होता है। तो मैं जो मेरे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हमें डमी जनरेट करनी होती है। डमी में हम कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट ग्रुप है वो 1 होगा और ऑल अदर्स विल बी 0, राइट। और ये डमी वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप जो सिग्निफिकेंट ग्रुप है उसको आप अपने कंट्रोल्स के अंदर जाके उसकी वेरिएंस को आप एग्जैक्टली टैप कर सकें और मेजर कर सकें। कैटेगोरिकल वेरिएबल याद रखिएगा कभी भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते, उनकी हमेशा आपको डमी वेरिएबल्स जनरेट करने पड़ते हैं, राइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे देखें कि ये जो 1 ईयर है और 5 ईयर्स है, या तो मैं ये 2 डमीज बनाऊं या मैं एक डमी बना लूं, उसकी वजह से ये दोनों भी कंट्रोल हो जाएंगे। इसको मैं सिग्निफिकेंट रख लूं 10 ईयर्स को, और इन दोनों को मैं नल रख लूंगी, राइट। तो जब मैं डमी बनाऊंगी तो मेरे पास डमी वेरिएबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। नाउ लेट्स गो टू दी ट्रांसफॉर्म recode into different variable, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरा एक्सपीरियंस का वेरिएबल है जिसको मैंने चेंज करना है। एक्सपीरियंस को मैंने कर दिया, नया नाम इसको मुझे अब देना है exp अंडरस्कोर 10, क्योंकि मोर देन 10 ईयर्स वाला था।
मैंने ये इसका नाम रख दिया। एंड मोर रख दिया मैंने इसका एक्सपीरियंस अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि इसके अंदर कोई इलीगल कैरेक्टर है। आई थिंक मैंने स्पेस जो डाली है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, मैंने इसको सिंपली एक्सपीरियंस 10 कर दिया। राइट, सो एक्सपीरियंस को चेंज कर देना है एक्सपीरियंस 10 में ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अच्छा, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज डिफाइन करने से पहले मुझे जाके देखना पड़ेगा ये कि मेरे पास ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज क्या हैं। वेरिएबल व्यू में आए, एक्सपीरियंस में आए, तो हम डमी किसके लिए बना रहे हैं? मोर देन 10 ईयर्स। तो इसकी ओल्ड वैल्यू क्या है? 4। राइट, तो अब मैं इसको जाके जब रीडिफाइन करूंगी तो मैंने क्या करना है? आई एम गोइंग टू दी ट्रांसफॉर्म रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक्सपीरियंस का मेरा वेरिएबल है, इसका मैंने नया नाम रख दिया। नया नाम मैंने इसका रखा है exp_10। नया नाम डिफाइन कर दिया। इसकी ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ओल्ड वैल्यू 4 है, नई वैल्यू मैंने क्या कहा कि इसकी कर दो 1। ऑल अदर वैल्यूज यानी कि बाकी सारी जितनी वैल्यूज हैं उनको क्या कर दो? उनको कर दो 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले अपनी जो 4 वैल्यू है, क्योंकि मोर देन 10 इयर्स की वो जो कैटेगरी वहां पे बनी हुई थी उसकी कोडिंग 4 थी, मैंने कहा डाटा शीट के अंदर रिकोड करो, नया वेरिएबल बनाओ एक्सपीरियंस का। ये जो नया वेरिएबल बनेगा ये डमी वेरिएबल कहलाएगा, जिसमें आप 4 को कोड करें एज 1 और बाकी सारी जितनी वैल्यूज आपके एक्सपीरियंस के अंदर आ रही हैं 2, 3 एंड 1 उनको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू 0। राइट, इसको मैंने प्रेस किया कंटिन्यू, इसको मैंने प्रेस किया ओके, and now you can come and you can see in the data sheet that a new variable has been created as experience 10। ये मेरी डमी होगी जिसमें 0 and 1 की वैल्यूज चल रही है। Is it clear to all of you? Right? इसी तरह से हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस में कोई और चीज़ हमारी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि पिछली भी कुछ कैटेगरीज में हमारे पास सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स आ रहे थे। अब ये एजुकेशन आप देखें जैसे हमारा सिग्निफिकेंट है फॉर दी जॉब परफॉर्मेंस। राइट, ओके, नाउ लेट्स कम एंड सी के जॉब परफॉर्मेंस में हमारा एक्सपीरियंस कैसे ये एजुकेशन कैसे सिग्निफिकेंट है। नाउ यू कैन सी दीज आर ऑल इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज टीओआई के केस में, कमिटमेंट के केस में। जॉब परफॉर्मेंस में ग्रेजुएशन जो है वो मास्टर्स और एमएस दोनों के साथ सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से मास्टर्स जो है वो ग्रेजुएशन के कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंट है। इसी तरह जो एमएस है वो ग्रेजुएशन के कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं ग्रेजुएशन को कंट्रोल कर लूं तो मेरा मास्टर्स और एमएस दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, विच आर सिग्निफिकेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बाकी आप नीचे आए तो ये आपके जो क्रिएटिव परफॉर्मेंस के लिए भी इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज है। तो मुझे अब एजुकेशन की डमी बनानी है ग्रेजुएशन की। सबसे पहले मैं जाके देखूंगी कि ग्रेजुएशन की कोडिंग क्या है। वेरिएबल व्यू में गई, एजुकेशन में मैंने जाके देखा ग्रेजुएशन इज 1। राइट, तो अब मैं इसकी जब डमी कोडिंग बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू गो टू दी एनालाइज ट्रांसफॉर्म रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अब इसको रीसेट कर दें। अब मैं किसकी डमी बना रही हूँ? एजुकेशन की। इसका मैंने नया नाम रख लिया edu_1। ये नया मैंने इसका लेबल रख दिया। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ओल्ड वैल्यू 1 है, न्यू वैल्यू भी मैं क्या कह रही हूँ? 1 रहेगी। ऐड कर दिया। ऑल अदर वैल्यूज, क्योंकि ग्रेजुएशन 1 पे कोड हो रहा था, पुरानी वैल्यू भी 1 थी, नई भी मुझे 1 चाहिए। ऑल अदर वैल्यूज मैंने क्या कर दी? 0। कंटिन्यू प्रेस किया and then I'm going to press OK, and you can see in the data sheet that another dummy variable of education has been created। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई है डमी वेरिएबल क्रिएट करने वाला या नहीं है। अच्छा, एजुकेशन के बाद हमारे पास आ गया एज। एज, you can see that
it is not having any significant relationship. Similarly, एज के बाद जो हमारा सबसे पहला था जेंडर, जेंडर में भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है. तो हमारे दो कंट्रोल वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए और उनकी डमीज बनाई, जो कि हमारे पास एक्सपीरियंस और एजुकेशन, एक एक्सपीरियंस की डमी है हमने, एक एजुकेशन की डमी बनाई, राइट. सो दिस इज हाउ we basically identify the controls and we create dummies for them.